syllabus first. Every time we should check the syllabus because this is the guideline. And also we don't have much time, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा. So now you can see this is the basic concept: potency, commitment, specification, induction, competence. Right? All these are very technical terms and are in very depth. Determination and differentiation, morphogenetic gradients, we will discuss today in detail. Commitment, again I am going to take it. Specification I will tell you detail also. And induction, competence, self-fate and cell lineage. Self-fate and cell lineage a little bit, but also we will discuss today genomic equivalence, cytoplasmic determinants, imprinting, right? Tomorrow I think we will be able to study mutants and transgenic analysis and development. So let us start. What is the commitment? Commitment of cell to specific cell fates and their capacity to difference into particular kind of cells. So what does it mean? If I'm saying yesterday we were discussing about the potency. Alright, potency means, can you tell me what was the potency? So potency is the power of expression. Right? What is the potency? Potency means power of expression. And when potency plus environment, both are interacting, then only you are able to see if the cell is committed. Committed means fate. Fate is decided. Committed means its fate is decided, right? Certain fate is decided. Okay. Fate is decided. So yesterday we were discussing that fate, there are certain conditions which are very inducive to decide the fate of a zygote. Right? Zygote is there and they must express by various stages to form the complete body structure. Complete body structure, right? I think light की थोड़ी इसमें अभी ठीक है lighting, right? Okay, so this is the commitment. So commitment give you idea of various things. For example, if I'm talking about the commitment, so they are giving you the positional information. Positional information. Positional information of a cells. And who is going to decide the positional information of a cell? This is decided by the certain signals, right? So certain cells are there which are very responding to the signals. Okay. Okay, I have not shared the link. So got the point? Got the point or not? Commitment means positional info and signal is going to decide. So overall, we can say if the signal is received by these cells, they will express, and their fate will be committed, right? Their fate will be committed. Okay. So now see the next slide. How does a cell know what to differentiate? There are certain basic idea which tell you how the cell is going to be differentiated, right? So this totally depends on the local environment as I was discussing. So cell have no roadmap. Actually it's the gene are there and certain signals are there which are going to
be expressive. Okay, the picture is not clear, but you can see the position. I will tell you this detail later on, but you must note it down here. What is the positional information? Part of the cytoplasm in egg from which cell derived, right? So cytoplasm also contains certain factor that is called the cytoplasmic factor. Okay, what is called cytoplasmic factor, which are present in the egg, and they are going to form. They have certain fate to determine. So other method of differentiation is because of interaction with nearby cells or substrate. Okay, nearby cells, right? It's okay. So reception of extracellular diffusants. There may be another signaling factor which are going to decide the differentiation, and maybe certain other differentiating factor like history of a cells. So I will explain in further slides and what are the consequences of a differentiation. So a cell, as a result of differentiation, the first thing they changes shape. They changes shape. They become polarized. What is the second feature? Note कर लो सारे. पहला, they changes shape. Second, they polarize. Polarized cells means this is also called as a asymmetry. This is also called as a asymmetry. Alright, this is also called as a asymmetry. Third one, they allow cell to move. Fourth point, cell now can divide or undergo apoptosis, right? Undergo apoptosis. So these are the consequences of differentiation. Okay, these are the consequences of. Good evening, Dipanshi. How are you? I'm audible clearly? So, yes, sir. And keep asking questions. If you are not getting anything, this is your class. You have full power, right? So, to discuss anything, but I'm trying everything. After discussion, you are able to solve all the questions from the previous year CSIR questions, right? So what is the consequences of differentiation? They can change, you can observe the shape changes. They are more polarized now. They can move, they can divide or die. And fifth point, send and respond to chemicals, right? Now they are more receptive to chemical signals, right? And sixth one is they can secrete and absorb extracellular material, right? So what I'm discussing today, we started जो लेट आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, that's why I don't appreciate late comers. ये आज हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस starting from this point, and then we are again discussing the commitment. Let me tell you in the brief, depends on the potential environment. Potential is the power of expression. Environment decides how the cell will be committed, and commitment means fate is decided in the fertilized zygote, right? So this fertilized zygote needs to be differentiated and then complete body organization. So next question was how the cell know that which part of the organ they have to form. So this is a certain
points you should note down that is required for the positional information. First one is the cytoplasmic factor are there in the egg, which are going to be present in the egg, and they are going to decide. This may be the one factor. Second factor may be nearby cells, neighboring cells going to decide. And third point is reception of extracellular diffusions, right? And next point is differentiation history of the cells. All these factors decides roadmap of the cells. So these are certain observations you can observe if the cell is going to differentiate, right? And then cell movement, that was a study we were discussing. Certain questions were asked from this portion. What is the cell movement? When cell moves long distance during development, as we have seen in the differentiation of ectoderm, endoderm, and mesoderm. So there are, I can zoom out for the more clear picture, but you must know that there are certain questions that is asked in the CSIR related to the cell movement, and one of them is, we have discussed already, movement of protruding and retracting filopodia or lamellipodia, that is formation of leading edge. Shape changes during movement may be random or direct, moved by sticking selectively to other cells, right? Certain adhesion molecules are there, you can see here. Now I think the picture is clear. So these are the important molecules. One is the cell-cell adhesion molecules, CAM, calcium-dependent adhesion, calcium molecule, in which you can see there is interaction with the catenin on the one side and actin bundles on the other sides. So catenin and actin, catenin, ye note kar lo, catenins plus catenin, these are the two interactive molecules which are going to decide the shape, and these interaction also not only going to decide the shape but also the movement of the cells. There is a calcium independent adhesion. Many times this question has been asked in the CSIR, right? Many times. So you must be aware of that. So immunoglobulin superfamily, you can see immunoglobulin superfamily, and CAM is there, which is calcium independent adhesion. Calcium independent adhesion. Alright, calcium dependent adhesion, इंट्रैक्शन ऑफ कैटेनिन एंड कैटेनिन, नोट कर लिया. ये दो हैं जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन है. कौन कौन से? अक्षिका नोट कर रहे हो बेटा? दीपाल जी नोट करो. यस सर. है ना, बरखा नोट कर लो आप. कैल्शियम डिपेंडेंट कौन सा है? कैडेरिन कैटेनिन, है ना, कैडेरिन कैटेनिन, कैटेनिन, ठीक है. एंड वन साइड में कैडेरिन कैटेनिन है और एक्टिन मॉलिक्यूल दूसरे साइड में है. तो दीज आर वेरी डिसिसिव फैक्टर्स इन द सेल मूवमेंट एंड द सेल शेप. अभी हम बात कर रहे थे ना डिफरेंशिएशन के सर्टेन फैक्टर्स हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? चेंजेस इन द सेल शेप. सेकेंड फैक्टर सेल मूवमेंट. तो कौन कौन से वो इंटरनल फैक्टर हैं जो इनको प्रमोट करते हैं? तो वो फैक्टर्स हैं कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड कैल्शियम इंडिपेंडेंट एडिशन molecule. Both are there, right? So NCAM is the immunoglobulin superfamily. They are calcium independent adhesion molecule which helps in the deciding cell shape and cell movement. I think this is clear. Clear है ये? Yes sir. Okay. And other molecule is cell matrix adhesion. Cell matrix adhesion involve three components: integrin, laminin, and extracellular matrix. What are the three components of cell matrix adhesion? बताओ, पहला नोट करो. हाँ, integrin पहला नोट करो. Second is the laminin, and third one is the extracellular matrix. Extracellular matrix. इसको क्या बोलोगे? ILE, है ना? जनरली क्या बोलते हैं लोग? ILU. इसमें हम क्या बोलेंगे?
है ना। इसमें हम बोलेंगे आई, आज पता नहीं कैमरे को क्या हो गया, इधर बैठा हूँ कैमरा उधर दिखा रहा है, कैमरे को पसंद नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। चलो अभी ठीक है आई थिंक। सो देर आर थ्री फैक्टर ILE, इंटेग्रिन, लैमिनिन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये तीन फैक्टर है Next. है ना। अब ये देखो बहुत सारे टिश्यू हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन है, सरफेस टेंशन डिसाइड हो रही है इन सारे फैक्टर से, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स फैक्टर से। इनमें लिम्ब बड है, पिगमेंट एपिथेलियम, राइट, एंड हार्ट, लीवर एंड रेटिना, ठीक है ना। So now this is the final organization where this is junctional adhesion in the membrane structure, right? And junctional adhesion molecule, non-junctional adhesion molecule. तो ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, but really they are going to play a greater role in the cell shape and cell movement. ठीक है? Okay. So how the cell is going to move? Cell is going to move selectively because of adhesion molecule. नोट कर लिया, क्योंकि एक एक पॉइंट ना कनेक्ट होगा जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे फ्रॉग का। अभी चिकन का मैं देख रहा था, चिकन एम्ब्रियो डेवलपमेंट उन्होंने CSIR में पूछा हुआ है, लास्ट 2000 ऑफरिंग में दिया होगा जब 2020 का, ठीक है। तो 21 का भी ऐसे ही एग्जाम होंगे, आपको अचानक से वो पूछेंगे, तो अचानक से नहीं होता है, बट बेसिक्स ये बहुत बड़ा चैप्टर है सेल डेवलपमेंट का, तो इसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट मिस दैट, है ना। लैमेलिपोडिया का हमने बताया मूवमेंट का बहुत बड़ी एग्जांपल है, रिट्रैक्टिंग फिलोपोडिया, प्रोट्रूडिंग एंड रिट्रैक्टिंग फिलोपोडिया आल्सो कॉल्ड एज लैमेलिपोडिया, एंड selectively they can move because all the cells can move and with the help of differential addition molecule. And what is the haptotaxis? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक ये पूछा नहीं है। What is haptotaxis? Movement with the help of extracellular material is called as haptotaxic. Movement लिख लो, movement with the help of स्टिकिंग ECM। ECM में हमने बताया 3 कंपोनेंट है, आई लव यू, ऐसे याद कर लो, ILE, ठीक है। ECM है 3 कंपोनेंट, इंटेग्रिन, सेकंड क्या है बोलो, बोल गए, इंटेग्रिन, लैमिनिन एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये पूरा एडिशन मार्केट बनाएंगे, ये कंपोनेंट है हेप्टोटैक्सिस में, द हेल्प ऑफ विच सेल कैन मूव, दिस इज कॉल्ड एज द हेप्टोटैक्सिस। अगर किसी केमिकल के वजह से घूम रहे हैं दे आर कॉल्ड एज द कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस इज वेल नोन, तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, दे आर गोइंग टू आस्क व्हाट, जो कि किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक, वो चीजें वो पूछने वाले हैं। हेप्टोटैक्सिस वो नोट कर लो, क्योंकि CSIR में हमेशा अनयूजुअल पूछा जाता है, दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन दोज टेक्निकल वर्ड्स। और जैसे कि आफरीन कल बात कर रही थी कि ऑलवेज दे आर बीन पॉइंटिंग वेरी स्मॉल थिंग्स, है ना, वेरी स्मॉल थिंग, वेरी माइन्यूट थिंग, और ऐसी चीज पूछेंगे जो कभी नहीं पूछा गया है। तो हेप्टोटैक्सिस मैंने अभी तक नहीं देखा, तो दे कैन आस्क यू वेरी सिंपल मूवमेंट ऑफ द सेल्स विद द हेल्प ऑफ extracellular material, right? So cell can have the bulk movement, for example secretion of ECM, differential cell division and oriented cell division। तो ये कुछ पार्ट हैं जो हमने इसमें डिस्कस कर लिए, ठीक है। एंड ऑलवेज यू नो दिस पार्ट इज आल्सो आस्क्ड सेपरेटली इन द CSIR, व्हाट आर द मैकेनिकल चेंजेस ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये नोट करने की बात है। फर्स्ट इज द इन्वेजिनेशन, in which you can see the cell is going to form the apical part and basal part, apical part and basal part। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? ब्रेक हो रही है आवाज? No, sir. अच्छा। then first second part is integration। integration you can see this is not invagination, rather than there is introduction of certain cells। Involution,
इन्वोल्यूशन एक दूसरे के ऊपर, ये देख रहे हो, दिस इज द मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड द involution. The term है, technical term है. They can ask you what are the different type of mechanical changes that is going to occur in the during the organogenesis. First is the invagination, second is the ingression, right? ठीक है जी. And third is the involution. Okay, so third is the involution. I think this is clear up. Invagination, I, तीनों I है. पहला I क्या है? Invagination. Second, integration. Third is involution. कैसे याद करोगे इसको? ये तो तीनों I से स्टार्ट हो रहे हैं. And then fourth one is the epiboly. Epiboly. कौन बोली? इन्वेजिनेशन में इन्वेजिनेट हो रहा है, जैसे आपका वेसिकल्स का फॉर्मेशन इन्वेजिनेट होता है. इंग्रेशन में आपका मूवमेंट ऑफ सेल अंदर की तरफ जाएगा. सेल गिर रही है, मतलब इसी से टूट के, इसी से सेल टूट के निकल रही है. और इन्वोल्यूशन मीन्स एक दूसरे के ऊपर रैपिंग कर रहे हैं जैसे, है ना. तो दिस इज द थर्ड पार्ट. इपिबोली, ठीक है. ओके जी, involution. And fourth one is the epiboly. कौन बोली? कौन बोली? Epiboly. And then fifth one is the intercalation, and fifth one is the convergent extension. तो these all term, क्योंकि आपने epiboly तक तो सुना होगा, बट पांचवा और छठवां नहीं सुना है, तो वो भी सुन लो, क्योंकि वो मार्क करना होता है. लास्ट इज सिक्स. हाँ, इंटरकलेशन पांचवा. सर कन्वर्जेंट एक्सटेंशन इज 6. हाँ ठीक है, अभी 6 है. कन्वर्जेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ ना सब साथ, यहाँ पे काउंट कर लो. कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, राइट. तो डायग्रामेटिकली आपने देख लिया. मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाह रहा था, ये आगे ही चलाया, पीछे पड़ गया. टच करते ही भाग जाता है. चलो, नो प्रॉब्लम. सो देयर आर टू टाइप ऑफ फेट. फेट कैन बी ऑफ टू टाइप, राइट. सेल फेट, स्पेसिफाइड सेल फेट. अब स्पेसिफाइड का अगर देखोगे तो you must know in which condition this specified fate is going to occur. First one is there should be neutral environment, है ना. कोई भी inductive factor नहीं है, कुछ भी नहीं है, normal environment है. तो under these conditions of neutral environment, then you can see there is. previous slide में जो intercalation था, previous slide में. तो ये इंटरकैलेशन एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हो. पहले ऐसे थे, दो सेल थे एक दूसरे के ऊपर, एक ग्रीन, वही मैं मुंह जूम कर रहा था. हाँ, अभी हो गया, बार भागी जा रहा था. ये दो सेल्स हैं, एक दूसरे में मर्ज कर गई. तो देखो एक दूसरे के आसपास है. ये हेपेटिक सेल्स में ही होते हैं ज्यादातर इस तरह के. कन्वर्जेंट एक्सटेंशन में 4 लेयर है, 4 लेयर की 2 लेयर बन गई लास्ट में, है ना. तो जिससे इसमें 2 ब्लू आ गई, 2 रेड आ गई, एक रेड एक ब्लू. हाँ, एक्सटेंड हो गई, चारों का एक बन गया. इपिबोली में क्या हुआ, आप देखो, सेल एनलार्जमेंट हुई, न्यूक्लियस फ्लैट हो गई फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन. ऑल दिस मैकेनिकल चेंजेस. हाँ, ठीक है ना. तो इपिबोली में से एपिथेलियल सेल, फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल सेल.
एपिथेलियल से, नोट करो, यानी बाउंड्री भी। हाँ, यहाँ पे भी देख सकते हो डेवलपमेंटल का पार्ट है जैसे न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन इन द एक्टोडर्म, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ड्यू टू मूवमेंट, है ना, सेल मूवमेंट, एपिकल कॉन्स्ट्रक्शन, एंड देन फाइनली न्यूरल फोल्ड इज देयर। तो दिस इज ऑल प्रोसेस, neural plate development, CNS, central nervous system development is because of the cell movement. ठीक है, then only you can see the all this formation. तो सोचो कि नेचर ने कितना मेहनत किया आदमी को बनाने में, और आदमी ने अपने आप को शैतान बनाने में 1 मिनट नहीं लगाया। कोई बम से मार रहा है, कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कोई मिसाइल चला रहा है, मतलब पागल हो गए सारे मरने वाले। नेचर ने कितने मुश्किल से बनाया है सारी चीजें। चलो, तो वही है ना कि बुद्धि तो सबको आती नहीं है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है भाई। तो नाउ यू कैन सी द स्पेसिफिक फेट, इरिवर्सिबल। तो डेवलपमेंट पढ़े होते तो पता होता कि अरे कितना ज्यादा कि एक दवा ले लो तो बच्चे का पूरी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जा रही है, पूरा डेवलपमेंट खराब हो जा रहा है। डिटरमाइंड इफ इरिवर्सिबल रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का चक्कर है। सेल फेट यहाँ पे गलत लिखा है, रिवर्सिबल यहाँ पे है रिवर्सिबल। स्पेसिफिक स्पेसिफाइड फेट, दिस इज रिवर्सिबल, एंड हियर डिटरमिन्ड, right, and there is a no effect of any environment, no effect of any। देखो, जिसको पढ़ने पढ़ाने का शौक होगा ना, वो बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेगा, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा, उसको मेहनत नहीं करना, उसको रटना नहीं है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। दिस इज द नेचुरल क्वालिटी दैट यू कैन इम्बाइब ड्यूरिंग द लर्निंग। बहुत ही है ना, इंटरेस्ट से आपको देखना है चीजों को, बिल्कुल याद हो जाएंगे। एक एक चीज मैं भी उसी तरह से समझाता हूँ कि आपको कुछ भी ब्रेन पे जोर ना देना पड़े। एंड देन ये समझ में आ गया, डिटरमिनेंट, डिटरमाइंड, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड ऑलवेज दिस फेट यू कैन नॉट चेंज, मीन्स दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, ऑलवेज दे आर इरिवर्सिबल। तो थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। तो there are other factors also, right, like cytoplasmic determinants, जिसकी बात हम कर रहे थे। Cytoplasmic determinants are the certain molecules present in the eggs, and how they are going to decide the fate. They are first, पहले तो ये asymmetric distribution में है, they are asymmetrically distributed in the zygote. Second, always they are intrinsic, always note कर लो, ऑलवेज दे आर इंट्रिंसिक, मतलब अंदर से ही रहेंगे, ठीक है, एंड ऑलवेज लोकलाइज टू वन पोर। तो ये 3 फीचर्स हैं एसिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स के। फर्स्ट, ऑलवेज एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलवेज। सेकेंड, इंट्रिंसिक, ऑलवेज इंट्रिंसिक। थर्ड, लोकलाइज टू वन पोर, ऑलवेज वर्ड यूज कर रहा हूं। एंड सेकेंड जो फेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, दैट इज द एक्सटर्नल इंडक्टिव सिग्नल्स। एक्सटर्नल वर्ड ही लग गया है, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज दे आर एक्सटेंसिव, राइट, एंड दे आर नॉट asymmetric, they are equally divided, that's why this is called as the symmetric distribution, and they are secreted by neighboring cells, they are secreted by neighboring cells. Clear right now? This is clear. What is the difference between the specified fate, determined fate, cytoplasmic determinant, and external inductive signal? So fate deciding, there are 4 factors, है ना, cytoplasmic determinants, external inductive signal। Excuse me, sir. सर आपने यहाँ पे बोला साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट में ऑलवेज, जो आपने फर्स्ट वाले में बोला वो क्या था, मतलब जो आपने ये ऑलवेज वर्ड यूज किया इसके बाद? साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मदर के साइटोप्लाज्म में होगा, एग में होगा ये, एंड ऑलवेज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसाइडिंग द
सर्टेन फेट। आपने देखा होगा कि मदर में स्पर्म तो बाहर ही होता है, सेल्स, है ना। जो मदर का साइटोप्लाज्म होता है, राइट, they have the greater effect over the development and they are acting as a signaling molecule. So signaling molecule you can divide into two parts. Signaling molecule into two parts. One is the external and other is the internal. External is called as the external inductive signal, and this is the cytoplasmic determinant. Clear हुआ? Yes sir. अब जो है we will discuss the specification and determination. What is the specification? Means now differentiation must be more clear, है ना. Differentiation is more clear, राइट. जैसे दो लोगों में दोस्ती होती है तो पहले वो दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यार, है ना. देन फाइनली पक्का वाला दोस्ती हो जाती है, भाई चलो अब फिक्स है. तो इसी तरह से डिफरेंशिएशन इज नाउ मोर क्लियर, राइट, एंड दे आर नाउ मोर कमिटेड. ये लिखते रहो, फ्लो चार्ट बनाते रहो, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं. मोर कमिटेड, differentiation is more clear now, and they are more committed for specific cell type. For specific cell type. तो इसी को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? This is called as the specification. क्या बोलते हैं? Specification, right? So specification representing a reversible commitment or determination और irreversible. तो ये दो तरह का हो सकता है. वन इज द रिवर्सिबल एंड अदर वन इज द इरिवर्सिबल, जो हमने पहले पढ़ा है ना. रिवर्सिबल हो सकता है और इरिवर्सिबल हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल हम क्या बता सकते हैं? ये ऑटोनॉमस दो तरह के होंगे एंड मोजाइक. कल इसकी बात कर रहे थे लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ज्यादा क्लियर नहीं है आपको. So again I am discussing what is autonomous. No external signal is required, right? इसको हमने अर्लियर में क्या नाम दिया था? बोलो. एक तो डिटर्मिनेंट था फेट और दूसरा क्या था? बोल गए. नोट्स स्पेसिफिक. सर स्पेसिफाइड. स्पेसिफाइड जो था वो रिवर्सिबल था, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफाइड. ऑटोनॉमस क्या होता है? अब आपको क्लियर पिक्चर आ गई. ऑटोनॉमस इज स्पेसिफाइड और मे बी दूसरा क्या था? स्पेसिफाइड एंड डिटरमाइंड. ठीक है ना. डिटरमाइंड में दिस इज इरिवर्सिबल एंड नो एक्सटर्नल सिग्नल इज रिक्वायर्ड. ऑटोनॉमस, ठीक है ना. जैसे अब ऑटोनॉमस का मतलब क्या हुआ? ऑटोनॉमस मीन्स सेल फेट इज असाइन्ड automatically. Cell fate is assigned automatically. So cleavage to blastula to cell fate assigned automatically, right? And other specification is, this is the type of specification. तो हम कैसे बना सकते हैं फ्लो चार्ट? स्पेसिफिकेशन लिखो, इसके दो टाइप बनाओ, ठीक है. वन इज द ऑटोनॉमस एंड अदर इज मोज़ेक. ठीक, बक्सा में बंद कर दो. कहाँ बंद कर दो? बक्सा में. अभी जो नोटबंदी हुई थी उसमें काफी जोक चल पड़े थे ना. काफी जोक्स आते थे घरों से कि मोस्टली क्या करती हैं लेडीज, जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ बंद कर देती हैं? बक्से में. सारे पैसे बेकार हो गए. तो स्पेसिफिकेशन टू टाइप. वन बक्सा इज द मोज़ेक, अदर इज द ऑटोनॉमस. ठीक है. तो स्पेसिफिकेशन में दो बक्सा आपको. एंड व्हाट इज द मोज़ेक? मोज़ेक बड़ा इंटरेस्टिंग है. मोज़ेक इज एक्चुअली अपीयरेंस is because of cytoplasmic determinant, जिसकी बात कर रहे थे. ठीक है.
अब आपको महसूस हो रहा है कल हमने जो पढ़ा था बिल्कुल क्लियर नहीं था या थोड़ा कम क्लियर था, आज आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है ना, Yes. क्योंकि कल बेसिक था तो मुझे पता था कि आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा. तो माई सेंसेस आर कनेक्टेड विद योर ब्रेन, दैट्स वाई वन टीचर का मतलब क्या होता है, वन ब्रेन टीचेस टू अदर ब्रेन. तो वॉट एवर यू आर फीलिंग यू मस्ट से, समटाइम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो साइटोप्लाज्मिक जर्मेन एंड मोस्टली दे आर mRNA, जो मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mRNA या कोई तरह का प्रोटीन हो सकता है साइटोप्लाज्मिक जर्मेन, जो इंट्रिंसिक होता है, जो अक्षय का आपने पूछा था, है ना, इंट्रिंसिक, राइट. तो नाउ दे आर लोकलाइज्ड आल्सो इन द अनफर्टिलाइज्ड एग, एंड whenever they are expressed they are going to give the mosaic appearance. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. So now the question is how generic embryonic cell become specialized cells? What are the factors those govern? Okay, क्या factor है जो govern करता है? No idea. How generic embryonic cell become specialized cells? So इसको क्या बोलेंगे? Cell differentiation. Cell differentiation, right? Cell differentiation कैसे होता है, right? So these are the three things. अभी दो ही दिखा है. Gene expression is one reason how the cell is going to be differentiated. Another is the signal. What are the different kind of inducers are there? That is called as the signal molecules. Inducers or signal molecules. Third one is the external or internal. तो अभी आपको क्लियर हो गया एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में? एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में क्लियर हुआ? व्हाट आर द एक्सटर्नल, टेल मी. Yes, sir. व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर? बिल्कुल याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है. एक्सटर्नल फैक्टर अभी हमने क्या डिस्कस किया, और इंटरनल क्या फैक्टर था? इंटरनल था साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, राइट? Yes, sir. And sir, Right. external inductive signal. ये सिग्नल था, ठीक है. तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज, अब देखो कनेक्टिंग लिंक है, बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल और इंटरनल signal is received by the cells, and then there is a gene expression, and finally you can say there is a cell differentiation. That's why this is the answer. Generic embryonic cells become now specialized cells because of external or internal signals which induces gene expression, and that leads to cell differentiation, and the cell differentiation finally form the specialized cell. तो एक और बक्से में बंद कर दो, ठीक है. क्लियर हुआ फ्लो चार्ट? How the generic embryonic cell become specialized cells? Only because of Signals, external, internal, and genes. right, external internal signals that induces gene expression, and this gene expression leads to cell differentiation, and because of cell differentiation there is a formation of a specialized cell. अब कोई भी रिसर्च पेपर या बुक पढ़ोगे, कुछ आइडिया डेवलप करना चाहोगे, then you can do, because you have a sufficient information knowledge. This is called as the accurate knowledge. Systematic knowledge is called as the systematic information is called as the knowledge. So now what is the role of signals? अभी हम सिग्नल की बात कर रहे थे ना, सिग्नल्स की बात कर रहे थे, जिसमें भी एक्सटर्नल सिग्नल की हम बात करेंगे, है ना. एक्सटर्नल सिग्नल में क्या होगा? एक्सटर्नल सिग्नल्स में क्या होंगे? All the external signals will be called as morphogens. क्या बोलेंगे? morphogen. What is the morphogen, beta? Morphogen is a localized signal or external signal,
right? So this is called the morphogen. Morphogen is spread from a localized source and then form a concentration gradient. एक तो लोकल सोर्स से इकट्ठा होगा, जैसे यहां से रिलीज हुआ, यहां से निकला और यहाँ पे सेल है, तो यहाँ पे आके एक इकट्ठा होगा तो चारों तरफ, है ना, तो ये एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे. हमने बताया था ना, मार्फोजन के एक फीचर होते हैं, ये एक ही तरफ इकट्ठे होते हैं, दोनों तरफ इकट्ठे नहीं होंगे, दोनों तरफ होंगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. तो व्हाट इज एग्जांपल ऑफ मार्फोजन? फॉर एग्जांपल विटामिन ए. इसीलिए आप देखोगे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में विटामिन ए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इंडिविजुअल सिग्नल है, प्रॉपर जो फेजेज हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वो कंप्लीट होते हैं. रेटिनॉल और विटामिन ए इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्फोजन सिग्नल. इस पे तो काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में स्टडी करना है. सो नाउ यू कैन सी ए मार्फोजन. नाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज ए मार्फोजन. मार्फोजन इज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल that act directly on cell to produce what? Specific cellular response. They are going to produce specific cellular response. All right. So this is what is morphogen? Morphogen is a signaling molecule. Signaling molecule that acts directly on cells to produce specific cellular responses. इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैराक्राइन सिक्रेशन. क्या बोलेंगे? पैराक्राइन सिक्रेशन means morphogen released from one cells acting over the local cells. ठीक है ना? पैराक्राइन. So what is the effect on the differentiation? They can decide the fate of many surrounding cells, or fate deciding factor, a fate deciding feature of the morphogen is called as morphogenesis. क्या बोलते हैं? Morphogenesis. What is the morphogenesis? When a morphogen decide fate of a cells. This is called as this mechanism is called as the morphogenesis. So because this is a asymmetric, they are going to concentrate at one place. That's why they often forms pattern formation. And this process of pattern formation is also called as patterning. This process is also called as patterning. ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत है? बरका, दीपांची, अक्षिका, दिस इज क्लियर? No, sir. Sir, morphogen decide fate of cell is called morphogen. हाँ. Yes. Mechanism is called as the morphogenesis. Mechanism. ठीक है. मैकेनिज्म इज कॉल्ड द मॉर्फोजेनेसिस, या इसी को दूसरा भी नाम देते हैं पैटर्निंग और मॉर्फोजेनेसिस और पैटर्न. अभी क्लियर हुआ? कई बार आप पढ़ते होंगे डेवलपमेंट टाइपोलॉजी में ये टर्म ना, आपको क्लियर ही नहीं होता होगा. Yes sir. व्हाट इज द पैटर्निंग? अब पैटर्निंग से समझ नहीं आएगी पैटर्निंग मतलब क्या. जब मतलब समझ में आए तो आगे आंसर हम दे, है ना. मार्फोजेनेसिस समझ ही नहीं आई कि क्या कर रहा है. अभी समझ में आ रहा है कि विटामिन ए है, रेटिनॉल है, मार्फोजन का सिग्नल का काम कर रहा है. दे आर डिसाइडिंग द फेट ऑफ ए सेल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं मार्फोजेनेसिस. वेरी सिंपल, कोई डिटेल नहीं है, सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी है. ठीक. सो स्लाइड को कितना नंबर दोगे? 10 आउट ऑफ Sir, 10. 10 आउट ऑफ 10. चलो, थैंक यू, वेरी क्लियर. मतलब स्लाइड बहुत ही क्लियर है. बरका, आप कितना दोगे? Yes, sir. 10 out of 10. वेरी गुड. दीपांची ने भी 10 दिया आज. दीपांची Sir, जब साइड व्यू में क्यों दिख रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई है. सर मतलब लेट मी
साइड व्यू दब गया है। सर अच्छा, जैसे होता है ना कि कॉर्नर में अगर, यस रुको, कुछ ना तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एडवांस में देखो। यस सर, क्योंकि कई बार होता है ना जैसे हम साइड में बैठ जाते हैं तो लगता है कि बिल्कुल कॉर्नर में। पता नहीं आज क्या हो रहा है, अभी देखता हूँ। मैंने थोड़ा सा कैमरा घुमाया था, थोड़ा सा वो सेट कर रहा था। अभी ठीक है, जब ठीक होगा तो। अभी ठीक है, नहीं ठीक है। अभी ठीक है मेरे ख्याल से, अभी सही हो गया होगा। अभी सही हो गया। सर अभी देखो, बेटर है। बेटर है ना, ठीक है। आज की ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी क्योंकि मैं ऑडियो अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैंने ऑडियो पर टेस्टिंग काफी करी, मुझे लगा कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ब्यूटीफुल हो तो सुनने का मजा भी आता है। वीडियो तो अच्छी जा रही है, स्लाइड भी अच्छी जा रही है, एक ऑडियो का फैक्टर था। तो ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम क्यों डिस्कस करें। मार्फोजेनेटिक सिग्नल कौन से हो सकते हैं, आप हैरान रह जाओगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड यू कैन सी these morphogenetic signaling are there, specific signaling are there, they and every time they are focusing on that, and you will find at least 4 to 5 question, not one question, 4 to 5 question in C section। आप समझ लो अगर 5 क्वेश्चन आए तो कितने मार्क्स के हो गए, दिस इज कैरिंग 4 मार्क्स इज ना, तो 20 मार्क्स के आप सेक्शन सी में आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन, और कम से कम 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में भी मिल रहा है, एटलीस्ट 10 मार्क्स के। तो 10 और 20 आपका 30 मार्क्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, एंड मोर देन दैट, इससे भी ऊपर जा सकता है बट नॉट लेस देन दैट। ठीक है, क्लियर। तो चलो हम बात करते हैं फेट की। तो फेट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फेट ऑफ ईच सेल डिपेंड्स ऑन द व्हाट इज द कंसंट्रेशन। दिस इफ कंसंट्रेशन इज डिस्टर्ब, इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर दिया, देयर मतलब कि देयर में भी एक ऑप्टिमल लेवल होता होगा, देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमल लेवल आल्सो। ओके, तो वो जो ऑप्टिमल लेवल होता होगा वो सारा डिसाइड करता होगा। तो वो हम फीचर करेंगे ग्राफ से, है ना। वो ग्राफ से, सेल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इवन अगर आप जीआरई की तैयारी कर रहे हो, अभी मैं इस सीजन से शायद स्टार्ट करूंगा, मई से स्टार्ट कर दूंगा, जून से, सॉरी जुलाई से जीआरई की प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने देखा कि जीआरई करके इंटरनेशनल, इंडिया में तो बहुत ही कम फेलोशिप है क्योंकि अभी कोविड है तो और भी समस्या होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी अब्रॉड मिल जाए तो वो तो अल्टीमेट पीएचडी है भाई, है ना। तो अब मिल जाएगी जीआरई का, आप सब्जेक्ट जीआरई का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और सिमिलर क्वेश्चन आते हैं आपको। यस सर, सेम ही क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट जीआरई में, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको 80% मार्क्स लाने होते हैं बस। तो यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्राफ, सारा कुछ वही। मेरे पास जीआरई की बुक है, आप भी मंगा सकते हो ऑनलाइन उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट प्री फिगर्स द पैटर्निंग और सर आप उसका नेम ग्रुप में सेंड कर देंगे। किसका, जीआरई का? यस सर, बुक जो आप बोल रहे हैं। हाँ, वो बुक मैं शेयर ही कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा आपको गूगल ड्राइव में। ठीक है, मेरे पास है तो मुझे क्या करना है, आप लेटेस्ट एडिशन मंगा सकते हो, ओल्ड एडिशन मेरे पास है। ओके सर, है ना। तो मैं उससे सीएसआईआर की जो क्वेश्चन है, मैंने देखा कि लास्ट 3-4 सालों से वो उसी बुक से उठा के स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन टीप रहा है है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं टेस्ट बनाता हूँ तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि रेगुलर टेस्ट दो, चाहे आपकी प्रिपरेशन हो या ना हो, एटलीस्ट यू विल गो थ्रू द, है ना। तो आक्षिका, आपने तो पूरा आपने पेमेंट किया है इतना, तो यू मस्ट नॉट मिस दैट, है ना। तो आपने तो फुल फी दिया, बिल्कुल उसको यूटिलाइज करो। जो लोग भी फीस दे रहे हैं तो पूरा यूटिलाइज करो ना उसको। ठीक है, दीपांची ने भी टेस्ट देना बंद ही कर दिया है, आई एम वेरी सरप्राइज। अब बरखा का पता नहीं क्या होगा, वो क्या करने वाली है। तो चलो, आफरीन भी बिल्कुल टेस्ट नहीं दे रही, इट्स वेरी सैड। तो इससे टेस्ट होगा ना आपका कॉन्सेप्ट, सोचते क्या हो। आपको अगर इरिटेशन हो रही क्वेश्चन पढ़ के, इट मीन्स कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये कौन कौन से सिग्नलिंग बेस्ड ऑन द मॉर्फोजेनेसिस, दैट इज सोनिक हेजेस। क्या नाम है, मेरे साथ बोलते रहो, सोनिक हेजेस। सेकंड विंगलेस, थर्ड सोनिक हेजेस,
हाँ, रेटिनोइक एसिड देख रहे हैं, इसका नाम पे ही सिग्नलिंग रखा हुआ है, रेटिनोइक एसिड, विंगलेस WNT, सोनिक एसिड। फोर्थ इज, ये तीसरा है, बोन मार्फोजेनेटिक BMP, इसको कहते हैं BMP। ठीक है, यहाँ पे SHH, सेकेंड WNT, नोट कर लो, नोट करते रहो, मेक ए गुड हैबिट ऑफ राइटिंग। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, याद रखना। कभी भी उस बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होता एग्जाम में जिसने लिख के प्रैक्टिस करी है। और जो बच्चे आधे मन से म्यूजिक सुनते हैं, आधे मन से व्हाट्सएप चैट करते हैं और आधे मन से पढ़ाई करते हैं, फिर उनके साथ प्रॉब्लम होती है। वो जानते सब कुछ है बट दे कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्ट आंसर, है ना। तो फाइब्रोब्लास्ट, ऑल दीज आर काइंड ऑफ fibroblast factor. Other fibroblast factors are also involved beside this, you can say, you know. All these are growth factor, SHH, WNT, retinoic acid, BMP। तो अभी आपको आइडिया ही दे रहा है, सो दैट अभी हम डिटेल जब पढ़ेंगे तो यू शुड नॉट सरप्राइज। आपके माइंड में 2-3 चीजें होंगी कि पैटर्निंग क्यों होती है, मार्फोजेन से। मार्फोजेन्स कौन से होते हैं, मे बी रेटिनोइक एसिड, मे बी अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एंड हाउ दिस इज गोइंग टू अगर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है, और लोगों को भी ब्रेक हो रहा है? नो सर। हाँ, कुछ वायर आपका हो गई, इंटरनेट का होता है, दोनों तरफ से होता है ना। हेलो हेलो, ओहो, हेलो, यू आर ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है आपकी। पता नहीं कब चली गई आवाज। सर क्लियर आ रही है। अरे अरे अरे, अच्छा, एक्सीलेंट। हेलो, ओहो, Yes sir, now it's clear. क्लियर बेटा, ठीक। Hello. आवाज क्लियर है, Yes sir. साउंड क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, Yes sir. एक सेकंड ना, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। Yes sir, it's clear now. अच्छा, अभी आवाज आई? हाँ, अभी आवाज आ गई। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी बीच में। तो मैं कह रहा था कि मार्फोजेंस आर सर्टेन काइंड ऑफ सिक्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स, आर सर्टेन काइंड ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, but always there is a certain signaling, and this pathway is known as sonic acids, wingless or retinoic acid or bone morphogenetic. Now you can see how this signaling is going to operate, how the morphogen is going to operate. I have told you there should be threshold value. क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड वैल्यू होना चाहिए। इसके बाद ही ये सल्फेट डिसाइड करेंगे। सल्फेट डिसाइड तब करेंगे जब सेल एग्जैक्टली या तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, है ना। सल्फेट नहीं डिसाइड होगा अगर मार्फोजन की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू? थ्रेशोल्ड कैन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मार्फोजन रिक्वायर्ड टू बाइंड टू रिसेप्टर। अगर सक्सेसफुली बाइंडिंग होंगे रिसेप्टर से, देन ओनली यू कैन सी देयर विल बी एक्टिवेशन और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग और कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट सर्टेन जीन्स। ठीक है, इतना क्लियर आपको, है ना। अब ये देखो यहाँ पे, हाँ अभी तो समझा व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेप्ट वाला देखा ना, तो एंजाइम अगर एंजाइम के एक्टिव साइट में अगर सफिशिएंट अमाउंट में सबस्ट्रेट नहीं होता है तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये नहीं हुआ तो प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, राइट। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब देयर शुड बी सक्सेसफुल बाइंडिंग ऑफ मार्फोजन एंड देयर शुड बी मिनिमम concentration of morphogen that should bind to the receptor. This is the signal you can see in the diagram. This is the production region, and if they are increasing in such amount that they are successfully binding to what? A receptor, then at the threshold value they are going to start the intracellular signaling, right.
or concentration of transcription factor required to activate certain genes. है ना? बात समझ गए? Now you can हाँ, बाइंड नहीं करेगा, हाँ बनेगी नहीं तो प्रोडक्ट भी नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू ही डिसाइड करता है एक्चुअल में इंडक्शन होगा कि नहीं। सिग्नलिंग नहीं होगी तो मॉर्फोजन भी है, सिग्नलिंग नॉट स्टार्टेड, then it's not going to decide or fate, because signal is very important for activation of certain genes. वो जीन्स ही नहीं एक्टिवेट हुई, तो जीन्स एक्टिवेट नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो गया। बरका भी आवाज क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये देखो, पोजीशन ऑफ ईच सेल इज डिफाइंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन, है ना। तो पोजीशन वैल्यू इज इंटरप्रेटेड बाय सेल व्हिच डिफरेंशिएट टू फॉर्म ए पैटर्न, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द पैटर्निंग। तो आपको यहाँ पे देखो ब्लू जोन की सेल है ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। व्हाइट जोन में थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर है तो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस, है ना। अगेन सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो व्हाइट और रेड दीज आर नॉट एक्सप्रेसिव, व्हाइल ब्लू वन इज एक्सप्रेसिव बिकॉज ये थ्रेशोल्ड के ग्रेटर कंसंट्रेशन में है। तो इसका डायग्राम ऐसे पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 विच आर गोइंग टू बी डिसाइड देयर फेट। तो आप क्या बोलोगे? 4 नो, 5 नो, 6 नो। कौन कौन से सेल? 1 2 3 में भी पार्शियल, इसको पूरा काट सकते हो। तो 3 4 5 6 डाउट में है, बट 1 2 इज गोइंग टू बी fully activated, yeah, they are going to decide their fate. अभी समझ आ गया अच्छे से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं चूज करोगे, अभी आ रहे हैं उस पर, अभी और भी आ रहे हैं। नियरेस्ट को तो वो देखो, ये ग्राफ में क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखो। ए पार्ट इज मैक्सिमम मॉर्फोजेंस, ठीक। और जो पोस्टीरियर पार्ट है मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल, ये मैक्सिमम मॉर्फोजेंस है। तो आप देखोगे ये एंटीरियर पोल में है, ये क्या है? एंटीरियर पोल है, ठीक है। ये क्या है? पोस्टीरियर पोल है, राइट। तो अब आप देखो 4 जीन शोन इन पार्ट ए, टेललेस, एम्प्टी स्पाइरेकल्स, हंचबैक, इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्रिपल्स आर फाउंड इन, अब मैं इजी करके बता रहा हूँ आपको ताकि ड्यूरिंग द डिस्कशन जब मॉर्फोजन की बात हो रही है तो ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी चलते चले। तो जस्ट यू कैन, मतलब शॉर्टकट में कह लो कि अच्छे से डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लर्न कर सकते हैं। टेललेस, एम्प्टी स्पाइरेकल्स, हंचबैक, क्रिपल आर फाउंड इन डिफरेंट लोकेशन विद इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। पहले तो नोट कर लो कि इनकी लोकेशन ड्रोसोफिला में होती है। कई बार तो छोटी छोटी चीज़ पूछ देते हैं, लोकेशन क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो ये नोट कर लो। टेललेस, एम्प्टी स्पाइरेकल, बड़ा अजीब सा नाम है, एम्प्टी स्पाइरेकल्स, हंचबैक, ठीक है ना। तो नाउ दिस इज द विच मॉर्फोजन? बाइक्वायड प्रोटीन। कौन सा है? सब चीज डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छे से आराम से, कोई जल्दी नहीं। दिमाग में एब्जॉर्ब करना है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाना टारगेट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है ब्रेन में नोट्स बनाना। एंड कॉपी में नोट्स इसलिए बनाते हैं कि हमें बहुत टाइम न लगे रिवाइज करने में। हमें जब भी ज़रूरत हो फटाफट 2 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में ख़त्म करो। अभी डिटेल नोट्स नहीं बन पाया इसका। आज मैंने वैसे स्लाइड कल की अपलोड कर दी थी, आज की भी स्लाइड अपलोड कर दूँगा। नोट्स इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि जो मैंने मेहनत की है 2 दिन 3 दिन से, है ना, वो लिखूं कैसे तो मुझे लगता है कि स्लाइड इज बेटर दैन एनी नोट्स। इसमें सारे एग्जांपल कवर हो जा रहे हैं, डायग्राम कवर हो जा रहे हैं। मैं स्लाइड में जो लिखा है वो डिलीट भी नहीं कर रहा हूँ आजकल, वो लिखा भी है। तो यू कैन फाइंड आउट ऑफ द गूगल क्लास में सारा अपलोड कर रहा हूँ।
तो दिस इज द बाइक्वाइट प्रोटीन. बाइक्वाइट प्रोटीन का पहले तो समझो, दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन. नाउ यू कैन सी कलर से काफ़ी अच्छे से है. ये टेललेस है, इम्प्टी स्पाइरिकल्स है और क्रिपल है, राइट. तो नाउ यू कैन सी दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बाइक्वाइट. बाइक्वाइट का एंटीरियर पोल में ज़्यादा है, राइट. तो टेललेस इज गोइंग टू एक्सप्रेस, इम्प्टी स्पाइरिकल इज गोइंग टू एक्सप्रेस, है ना. और क्रूपल का एक्सप्रेशन है कि नहीं ये तुम डायग्राम से देख सकते हो. तो ये आप देख लो कि एंटीरियर पोर्शन में अमाउंट अगर ज़्यादा है तो एक्सप्रेशन बी में देखो आप, है ना, अलग है. सी में जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर डी में देखो बिल्कुल डिफ्यूज हो गई है. तो इक्वल कंसंट्रेशन हो गया डी में बाइक्वाइट का. बी में एंटीरियर में ज़्यादा है, ठीक है, पोस्टीरियर में कम है. सी में अभी आप देखो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इंटीरियर पोस्टीरियर में गड़बड़ हो गया, क्योंकि थ्रेशोल्ड वैल्यू पता नहीं शायद पहुंची नहीं है या पहुंच गई है बट एक्सप्रेस नहीं हुआ है, उस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट. एंड देन लास्ट वन इज कि ये क्रूपल वाला हो गया कि इक्वली, है ना, बिल्कुल थ्रेशोल्ड से कम है. तो आगे की पिक्चर में भी मैं और ज़्यादा क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर ही रहे हैं. अब देखो, इम्प्टी स्पाइरिकल जीन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर हेड फॉर्मेशन. क्रूपल इज ऑल्सो टर्म्ड एज गैप जीन, मीन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एम्ब्रियो. एंड फाइनल है हंचबैक आर द मैटरनल इफेक्ट जीन दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पैटर्निंग ऑफ एंटीरियर पार्ट. तो हंचबैक देखो, हंचबैक अच्छे से एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, पैटर्निंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था. और इसको इंड्यूस किसने किया? बाइक्वाइड ने, राइट. तो बाइक्वाइड के इफेक्ट में आपका टेललेस भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस हो गया. इम्प्टी स्पाइरिकल दोनों मिलके हंचबैक का फॉर्मेशन इन्होंने अच्छे से कर लिया, राइट. अब जो हंचबैक था, हंचबैक वॉज ए मैटरनल इंड्यूसर, है ना, एक्सटर्नल इंड्यूसर और इंटरनल, यही बात करी थी हमने. तो हंचबैक इज द मैटरनल इफेक्ट जीन, है ना. तो मोस्टली ये डिसाइड कर रहे हैं एंटीरियर पार्ट को, और टेललेस इसलिए कर रहे हैं टेल की तरफ होता है, यानी पोस्टीरियर पार्ट में होता है. तो अगर ये एक्सप्रेस नहीं हुआ तो पोस्टीरियर पार्ट दब जाएगा, आपका पोस्टीरियर पोर्ट एक्सप्रेस नहीं होगा, राइट. दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है. तो वेरी सिंपल आंसर था बाइक्वाइट प्रोटीन ड्रोसोफिला में, ठीक है. अब ये और ज़्यादा डिटेल में हम चले गए. कंसंट्रेशन का ये है ना बेटा, ये देखो थ्रेशोल्ड वैल्यू की बात करी थी ना. तो अगर हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एंटीरियर पोर्शन ये है, अगर ये कंसंट्रेशन पोस्टीरियर में होता तो ये पोस्टीरियर नहीं होता, फिर ये एंटीरियर होता. पोस्टीरियर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं थी, कंसंट्रेशन यहाँ पे थी, इसीलिए एंटीरियर हुआ. हंचबैक पैटर्निंग, ये पैटर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ. तो यहाँ पे 3 जीन है. टेललेस ये पीछे काम करेगी पोस्टीरियर में, इम्प्टी स्पाइरिकल हंचबैक ये एंटीरियर में काम करेगी. तो टेललेस एक्सप्रेस भी तो हो. तो टेललेस के एक्सप्रेशन के लिए आपने देखा कि बाइक्वाइड मस्ट बी बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल. इस स्लाइड से ये क्लियर हुआ कि बाइक्वाइड इज एसेंशियल, इट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू इज एसेंशियल, और आपका जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमाइन होता है, फिर आगे का डेवलपमेंट सही होगा. अगर एक्सिस में ही गड़बड़ हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम होगी. After fertilization, backward mRNA from the mother fly begin to translate it into backward protein in the Drosophila zygote, and you can see this image. This is going to show how the backward protein diffuses through the egg, forming a gradient. Clear? So high concentration of backward protein are shown in white. ठीक है? On the left anterior end of the zygote, low concentration are shown in blue. ठीक है? तो डायग्राम में आप देख सकते हो सेम थिंग इज डिपिक्टेड, राइट पोस्टीरियर एंड. ठीक. And now you can see there is a further round of developments. After the round of mitosis, more backward protein
in the anterior regions than in the posterior regions. Very simple. तो आपको इस पे तो क्लियर हो गया कि जहाँ पे क्वेश्चन फंसने वाला है तो दे कैन आस्क यू एंड यू कैन आंसर वेरी इजली. अब ये देखो रीजन वेयर द टू प्रोटीन ओवरलैप. दिस इज द लास्ट डायग्राम आई थिंक दे आर टॉकिंग ना. डी, हाँ डी के बारे में बात कर रहे हैं. ये डी के बारे में बात हो रही थी. इसके पहले वाला जो डायग्राम था वो सी के बारे में बात हो रही थी. दिस वॉज द सी, सॉरी भागी जा रहा है. हाँ ये सी के बारे में बात हो रही है. ठीक है, इसके बाद वाला जो डायग्राम है वो डी के बारे में बात हो रही है. नाउ यू कैन सी, हाँ D1, राइट. तो रीजन वेयर द टू प्रोटीन ओवरलैप, कौन कौन से? क्रिपल, हंचबैक. क्रिपल देख रहे हो, क्रिपल, हाँ ये वाला है ना क्रिपल और हंचबैक, राइट. एक तो बाइक्वाड था यहाँ पे, है ना. अब यहाँ पे हंचबैक मैटरनल फैक्टर है, ठीक. तो ये जब बाइक्वाड आया तो बाइक्वाड की वजह से एंटीरियर पोर्शन आपका अच्छे से डेवलप हो गया, राइट. बट बीच वाला पोर्शन जो है जहाँ पे क्रिपल और हंचबैक मीट कर रहे हैं, मिल रहा है, तो आप देखोगे इस तरह की फेट आ रही है. येलोइश रीजन है ना. दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन. ओवरलैपिंग रीजन ऑफ व्हाट? hunchback and cripple. है जी, क्लियर है ये. तो बैकवर्ड हाई कंसंट्रेशन में हो गया, बियॉन्ड टू एंटीरियर पोर्शन. अब बीच में जहाँ पे हंचबैक और एंटीरियर पोर्शन क्रिपल प्रोटीन जहाँ पे मीट कर रहे हैं ओवरलैपिंग रीजन में, दे आर गोइंग टू शो सच काइंड ऑफ पैटर्न, राइट. अभी बिल्कुल क्लियर है. डायग्राम ए, डायग्राम बी, डायग्राम सी. देखो ये था डायग्राम ए के लिए, सॉरी हाँ ए, एंड देन लिटिल बिट ऑफ बी. फिर हमने बात करी सी की. हाँ ये बी की बात करी, ये वाला बी का डायग्राम है, ठीक है ना. आफ्टर फर्टिलाइजेशन बैकवर्ड mRNA from the mother fly begin to translate into backward protein in the drosophila zygote, and this shows how the backward protein diffuses through the egg forming a gradient. ठीक है. फिर हाई concentration of backward protein shown in white on left anterior end of the zygote, low concentration shown in blue on the right. तो ये जो है लो concentration backward का है, and this is the high concentration backward. ये देखो अभी क्लियर हो गया. बी डायग्राम. सब बच्चे चले गए क्या? हमने कहा सब सो गए. अच्छा, एंड दिस इज द सेकंड, है ना. एंड नाउ दिस इज द डी. तो अभी बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर हाई होगा तो इस तरह का ग्रेडियंट होगा, है ना. थोड़ा सा और आ जाओगे तो यहाँ पे होगा इस तरह का. एंड अगर बीच में मिलता है जैसे हंचबैक और क्रिपल एक जगह मीट किए तो ओवरलैपिंग रीजन में इस तरह का फेट आया एक्सप्रेशन में. तो ये ग्राफ बना. इस पे क्वेश्चन है, मैं वो पूछूंगा अभी. अब ना ये CSR में एग्जैक्टली ये ग्राफ देके पूछा गया था कि बताओ जब हंचबैक हाई था, नोट करो, व्हेन हंचबैक इज हाई तो किसका कंसंट्रेशन लो था. बस सिंपल क्वेश्चन पूछा था. ABCD. कॉर्डल का, बैकवर्ड का, नैनोस का, ऑल एंटीरियर पोर्शन के लिए, फॉर एंटीरियर पोर्शन. या मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं इसको ओनली A एंड B इज ट्रू. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन A एंड C इज ट्रू. थर्ड ABC इज ट्रू. फोर्थ
ABCD is true, मतलब all is none is true. चलो none कर दो, none is true. अब बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि ग्राफ तो ऊपर दिख रही है. नो आइडिया बच्चों. हंचबैक हाई एंटीरियर पोजीशन, ठीक है. अब उसमें मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा है, मैंने सोचा आपने समझ लिया होगा. विच इज लो, विच कॉम्बिनेशन इज लो? कॉर्डल, बाइक्वायर, नैनो, ऑल. हाँ, व्हेन ऐसे समझो, व्हेन हंचबैक इज हाई एट एंटीरियर एंड विच इज लो. अब यहाँ पे अंडरस्टूड है एट एंटीरियर एंड. तो आप देखो कॉर्डल का यहाँ पे हाई है ना, यहाँ पे थोड़ी हाई है एंटीरियर में. नैनोस का पोस्टीरियर में ये दोनों हाई है ना. हाँ, तो ये दोनों हाई एंटीरियर में है, ये दोनों हाई है पोस्टीरियर में. कॉर्डल है, नैनोस. तो बहुत आराम से ना सेकेंड क्वेश्चन लिखाता हूँ. ये देखो, अब इस तरह क्वेश्चन अचानक आएगा तो आप घबरा जाओगे, लेकिन अभी पढ़ के, है ना, पढ़ के करोगे तो देन यू कैन. ये पूछा, एग्जामिन द फिगर बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच स्टैंडर्ड बिलो इज ट्रू? हंचबैक इज लाइकली पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ कॉर्डल. बहुत अच्छा क्वेश्चन. वो तो सी था. नहीं, वो पहले वाला पूछ रहे हो. इसका मुझे पता नहीं, अभी पढ़ना पड़ेगा मुझे भी. तुम लोग डिसाइड करोगे, देन आई विल डिसाइड. हंचबैक इज लाइकली पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ कॉर्डल. नैनोज इज लाइकली पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ बाइक्वायर. हंचबैक इज लाइकली नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ नैनोज. बैकवर्ड इज लाइकली पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ कॉर्डल. भाई देखो, एक हाई होगा तो दूसरा लो होगा, है ना. बट हंचबैक को कॉर्डल से जोड़ा है क्योंकि उनकी सेम, है ना, सेम कंसंट्रेशन आ रही है, मतलब हाइट. ठीक है, इसकी सेम हाइट आ रही है बाइक्वाइड और नैनो की. तो ऑब्वियसली रिलेशन है बाइक्वाइड और नैनो में और हंचबैक और कॉर्डल में. तो कह रहा है विच इज ट्रू. तो हंचबैक का कॉर्डल से पहले ही है ना, और बाइक्वाइड का नैनो से दूसरे में भी है. हंचबैक इज नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ नैनोस. तो ये भी सही लग रहा है. पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव तो दोनों नहीं हो सकते. नेगेटिव हो सकता है हंचबैक. बैकवर्ड इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है ही नहीं है, नेगेटिव है वो. तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. देखा, तो दिस इज द पावर ऑफ स्टडी. पढ़ने से ये फायदा होता है. अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे. So this is the cytoplasmic determinant. What is the role of cytoplasmic determinant? Cytoplasmic determinant may be mRNA and transcription factor. Now you can see here in the diagram, they are concentrated at one position and also they are helping in the cell division. During cell division, one daughter cell is receiving high concentration of the cytoplasmic determinant while other end is not receiving that much amount. And after their separation, you can see obviously the one cell is going to have higher concentration of cytoplasmic determinant that are more localized mRNA or transcription factor, while this is having nil. So they are then deciding the obviously fate, है ना. एक पिछले साल पूछा हुआ तो इसलिए मैंने ले लिया, अभी ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दूंगा. दिस इज द कंप्लीट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. इसमें बहुत सारे जीन है. एक्टिविन का पूछा था क्या रूल है, तो सिंपल यहाँ पे नोट कर लो. एक्टिविन इज गोइंग टू डिसाइड द एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल. तो इसमें दिखा गया है कि एक्टिविन को अगर ट्रीट किया, है ना, एनिमल कैप्सूल से, देन दे आर रीएग्रीगेटिंग ऑफ कल्चर एंड देन यू कैन सी द
बेड इम्प्लांटेशन, एक्टिविन बाउंड टू द बेड, और इनको बेड में लगा के दिया गया सेल्स को, है ना, 2 एनिमल कैप्स, देन एक्टिविन ग्रेडियंट फॉर्म। अब ये भी क्या है, वही मार्फोजेंस है। एक्टिविन का ग्रेडियंट बना, इनसे टू जीन एक्सप्रेशन, तो उनकी जीन एक्सप्रेशन हुई। तो अब ये देखो मार्फोजन ग्रेडियंट मैटरनल एंड जाइगोट वेंट्रल 1 to 5 आवर्स में, यहाँ पे देखोगे ज़्यादा है वेजिटल पोल में, है ना। ये जो हम कह रहे थे वेजिटल पोल में ज़्यादा है इसका एक्टिविन का, अर्ली जीन में इधर थोड़ा बीच में है। फिर इवेंचुअली आफ्टर द 2 days, है ना, तो वो एक अलग हो गया। तो यहाँ पे पूछा था लास्ट ईयर कि व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ न्यूकूप सेंटर। न्यूकूप सेंटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द वेजिटल पोल। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर सकते हो कि मार्फोजन कंसंट्रेशन से डिसाइड करता है सल्फेट, एंड ऑल्सो डिसाइड द एक्सिस, ऑल्सो डिसाइड द, तो मार्फोजन क्या डिसाइड करता है बेटा, एक्सिस एंड पोल्स। मार्फोजन डिसाइड्स एक्सिस एंड पोल्स। पोल्स दो तरह के होते हैं, एनिमल एंड वेजिटल। वेजिटल में क्या होता है, न्यूकूप सेंटर, NIUWKOOP सेंटर, ठीक है ना। बाकी इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जिसको हमने बता दिया। मार्फोजन दोनों डिसाइड करता है, एक्सिस भी, एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इनवर पोल वेस्टर्न पोल। अब आपको बताएंगे कि जब जाइगोट का डिवीजन होता है, यहाँ तो जाइगोट में ये सारी चीजें हो रही ना, ठीक है। अब जाइगोट का जब डिवीजन होगा तब वो क्लीवेज पैटर्न में ब्लास्टुला, मोरुला, वो सारा इसी वजह से फिर डिसाइड होता है। अगर ये गड़बड़ हो गया मार्फोजन, तो ये पूरा क्लीवेज पैटर्न ही गड़बड़ हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द पैटर्निंग, बार बार उसको बोलते हैं क्लीवेज पैटर्न। अभी हम डिस्कस करेंगे। मार्फोजन का रोल देखो, इन द C. elegans, all of the cells in the embryo are visible on the left side of the image, while only the P granules are visible on the right side, है ना। So the P granules were fluorescent label, ये देखो ये है, ये देख सकते हो, मैंने वाइट पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये वाले देख रहे हो, ये क्या है, P granules, right? Green dots are the what? P granules. What is the P granules? P granules क्या होता है, मार्फोजेंस। कहाँ पे, मार्फोजेंस कहाँ पे होता है, C elegans, elegans, ठीक है ना। बरका आप अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करो, है ना, दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ 1 week क्लास। और ऐसी अच्छी क्लास नहीं मिलेगी, आई कैन बेट, आप कहीं भी पढ़ लो। हाँ, कोई बात नहीं, वी आर ऑल डूइंग एफर्ट इन दिस वर्ल्ड। व्हाट वी आर डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट। कल को कोई ये नहीं कहेगा, जब हमारा सक्सेस रेट हाई होगा, तो कोई ये नहीं कहेगा कि अरे यार तुमने बताया नहीं। तो आप कह सकते हो कि नहीं हमने तो बताया था, आप फिर इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो दिस इज कॉल्ड एज द मार्फोजन एक्टिवेशन। आप मार्फोजन का काम करो बाकी उनका सल्फेट वो खुद डिसाइड करेंगे। सो दैट वाज द मैसेज, कि आपको याद भी हो जाएगा कि सल्फेट के रिगार्डिंग मार्फोजेंस का क्या रोल है। अब नाउ क्लीवेज कैन प्रोसीड। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, आपको कोई टफनेस नहीं फील होगी कहीं पे भी पढ़ने में। वो साइड ठीक है, 1 cell मोरुला बनेगा ही, क्लम्प ऑफ सेल्स, ब्लास्टुला बिगर बट हॉलो बॉल ऑफ सेल्स, राइट। नाउ मोरुला में आप देख सकते हो, दीज आर द थिंग्स। मैटरनल डिटरमिनेंट्स आर लो नाउ, सेल हेटेरोजेनिटी हाई, सेल डिवीजन लो, डाउन है ना एरो, एम्ब्रियोनिक जीन एक्सप्रेशन हाई। एरो से समझ रहे हो ना क्या हाई है क्या लो है, सेल डिवीजन लो, मैटरनल डिटरमिनेंट्स लो, लो, दिस इज हाई, दिस इज हाई। नोट कर रहे हो ना, नोट करते रहना। अब मैं वही बात कर रहा था,
ठीक, आगे। वैसे तुम लोग स्लाइड कंट्रोल कर सकते हो, मैं किसी को दे सकता हूँ, अक्षिका को दे देता हूँ पावर। कहाँ गया रिमोट का ऑप्शन ही खत्म गया। कई ऑप्शन पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, समझ में नहीं आता है। हाँ ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस कि हाउ द मार्फोजेनेटिक इंफॉर्मेशन गोइंग टू डिसाइड बोथ, है ना, एपी वीडी। इसको कैसे याद करोगे? मार्फोजेनेटिक फैक्टर इज गोइंग टू डिसाइड बोथ एपी एंड वीडी। एपी मतलब इंटीरियर पोस्टीरियर, और वीडी मतलब हाँ वेंट्रल। इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको देख पाओ। फिर इसको और बड़ा हो गया, अब मैं जूम भी कर दूंगा तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ ये देखो, अब ये पहचानो डॉर्सल वेंट्रल कौन सा, ऊपर सीधे सीधे स्काई एंड अर्थ। स्काई इज द डॉर्सल, अर्थ इज द वेंट्रल, ठीक है। फ्रंट इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इज द टेल, ठीक है। अब राइट एंड लेफ्ट इसके 60 डिग्री एंगल पे है। तो ये देखो जेब्रा फिश में देखो एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट, डॉर्सल वेंट्रल, ठीक है। एंड दिस इज द लेफ्ट एंटीरियर के पास, राइट है डॉर्सल के पास, ठीक। यहाँ पे देखो मार्फोजन का, दिस इज मैटरनल जीन, ठीक है। मैटरनल जीन ग्रुप है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, बहुत सारे बैकवर्ड क्रिपल बहुत सारे, है ना। बैकवर्ड यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में, तो एंटीरियर, पोस्टीरियर में मिसिंग है तो टेल, ठीक है। इसी तरह से ये पूछा हुआ था, मैं हैरान था देख के कि 2019 में सिंपल क्वेश्चन पूछा था और उसका जवाब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने गलत लगाया था कि मैटरनल जीन बैकवर्ड जीन इज गोइंग टू एक्सप्रेस व्हेन, दिस इज द पार्ट ऑफ मैटरनल जीन। नोट कर लो कि बैकवर्ड प्रोटीन जो है, हंचबैक, बैकवर्ड, क्रिपल, ये सारे क्या हैं, दीज आर द मैटरनल जीन्स। यहाँ पे साफ नहीं है लेकिन मैं लिख देता, आप लोग लिख लो, जो मैं लिख नहीं सकता, चलो लिख सकता हूँ, यस या आइडिया आ गया, ठीक है। आप क्या लिखोगे, सॉरी, मैटरनल जीन ऑफरिंग चली गई कि है, मैटरनल जीन बैकवर्ड हंचबैक क्रिपल, है ना। ये वो साथ में एक्सप्रेस हो रहा है ना, इसीलिए वो ग्राफ शो किया था कि वो आएगा तो वो नहीं आएगा, निगेटिव पॉजिटिव, बट ये 3 है मैटरनल जीन वाले बे, स्पेशली जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एंड जाइगोटिक जीन नोट कर लो, गैप, पेयर रूल, सेगमेंट पोलैरिटी। लैपटॉप अगर आपके पास है तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी रिसर्च में, तो आपको चाहिए ही लैपटॉप, तो बेटर है कि मोबाइल छोड़ के लैपटॉप मैनेज करो। मोबाइल बेच दो, बल्कि 5000 का मोबाइल ले लो काम चलाओ, क्योंकि मोबाइल का काम है सिर्फ रिसीव करना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो देखो मोबाइल के वाईफाई से चलता है ये लैपटॉप, मैंने कोई वाईफाई नहीं लगाया क्योंकि बजट लो है। तो करते हैं सेगमेंट पोलैरिटी, एक हो गया, सेगमेंट पोलैरिटी 1, पेयर रूल 2 एंड गैप जीन 3, ठीक है। और लास्ट है, कोई खास नहीं है, सेलेक्टिव जीन्स। ये उन्होंने पूछा था कि जाइगोटिक जीन कौन कौन से हैं, गैप, पेयर रूल, सेगमेंट पोलैरिटी एंड सेलेक्टिव। सेलेक्टिव भी मैं लिख देता हूँ।
चल ही नहीं रहा पे, सेलेक्टिव, ठीक है जी, कर लिया नोट। बैकवर्ड, हंचबैक, क्रिपल, मैटरनल जीन्स, जाइगोटिक, गैप, पेयर रूल, सेगमेंट पोलैरिटी एंड सेलेक्टिव। ठीक है, आगे चले। अब ये देखो, अब आपको सरप्राइज नहीं होगा, कभी भी बुक में देखोगे तो आपको दिमाग नहीं गड़बड़ हो जाएगा कि अरे ये क्या एक्सप्लेन हो रहा है। अब इंटीरियर डॉर्सल पोर्शन, इंटीरियर पोस्टीरियर भी एक्सप्लेन कर दिया, राइट, एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल। अब इनका नॉमेनक्लेचर रह गया, राइट। सो दिस इज द लेट एम्ब्रियो, लेट एम्ब्रियो टू एडल्ट, एडल्ट में सेगमेंट। अभी सेगमेंट पोलैरिटी की बात हो रही थी ना, ठीक है। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेगमेंट। अब ये होगा टी फॉर थोरैक्स, टी फॉर थोरैक्स, ए फॉर लिख लो, टी फॉर थोरैक्स, तो उसमें नंबर दे दिया T1 T2। ए फॉर एब्डोमिनल, एब्डोमिनल क्या है, A1 है कि नहीं, A1 नहीं है शायद, A2 से लेके पूरा ही लिख लो, A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो थोरैक्स, थोरैक्स T1 T2 T, A1 है वहाँ पे, अच्छा हाँ A1 है, हाँ लेट एम्ब्रियो में, एडल्ट में नहीं है, ठीक है। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे पूरा एक्सप्रेस हो गया। ओके, व्हाट इज द सी, सी क्या भाई, कौन चला गया, सी फॉर, सी फॉर तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। ये वाला ना, ये ना थोरेसिस पार्ट, हाँ हाँ ये देख रहा हूँ, ये T2 है, यही ना, ये हाँ अभी देखो T1 T2 T3 का वन टाइम था, लेकिन ये कन्वर्ट हुए, तो इसलिए उनको पोजीशन दिखा रहा है कि T2 का कुछ पोजीशन इधर कन्वर्ट हुआ, T3 का कुछ पोजीशन इधर लेग में कन्वर्ट हो गया। बॉडी प्लान दिखा रहा है ना, अभी तो अभी बॉडी प्लान दिखा रहा है आपको। अगर आप लेट एम्ब्रियो में देखोगे तो सारा बिल्कुल लाइन से है, कोई भी रिपीटेड नहीं है ना। C1 है, C2 C3 T1 T2 T3 तीनों है ना, A1 A2 इसे लेके 8 जिन तक है, A1 A2 A3 A4 5 6 7 8। तो अब आपको कोई भी सरप्राइज नहीं लगेगा व्हाट आई एम सेइंग। Gastrulation, again the rearrangement of blastula, and this is going to differentiate it into ectoderm, mesoderm, endoderm. Gastrulation is because of morphogenesis, खाली इतने लाइन आपको बता रहा था। Gastrulation is because of morphogenesis. तो now they have, CSIR is not mentioned any name of animal, but यहाँ पे आप देखो सारे नाम आपको मिल जाएंगे morphogenesis में, जैसे जीनोपस है ना, एम्ब्रियो बिगनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन, चिक, माउस, जेब्राफिश है ना, एम्ब्रियो राउंड एट द फाइलोटिपिक स्टेज। तो बिकॉज ऑफ मार्फोजेंसिस द गैस्ट्रुलेशन इज वेरी क्लियरली डिपिक्टेड इनटू द 3 लेयर, 3 जम्प्स लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एंड फर्दर देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्फोजेंसिस ऑफ डेवलपमेंट मैकेनिक्स, सेल एडिशन, सेल शेप ऑलरेडी डिस्कस है ना, रोल ऑफ सेल एडिशन, सेल शेप, सेल मूवमेंट, सेल प्रोलिफरेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या मेंशन करना चाहते हैं, तो मार्फोजेंसिस इज आल्सो कॉज ऑफ मोल्डिंग एंड स्कल्पचरिंग। यहाँ पे नया नया शेप बन रहा है, नई नई स्ट्रक्चर बन रहा है, टिश्यू डिफरेंशिएट हो रही है, ऑर्गन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो एक तरह से मिट्टी का घड़ा किसने कन्वर्ट किया, कुमार ने, दैट्स कॉल्ड एज स्कल्पचरिंग।
तो वो उस तरह से हो रहा है यहाँ पे। मार्फोजेन इज लाइक ए कुमार। तो देर आर गैस्ट्रुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन सिग्नलिंग सेंटर, जो कि हम बात कर रहे थे, न्यूकूप सेंटर था यहाँ पे। स्पेमेन ऑर्गेनाइजर आपको मिल जाएगा एंड हैंसन नोड्स। तो हैंसन नोड्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पूछते ही हैं, तीनों में से एक जरूर पूछते हैं, या तो स्पेमेन ऑर्गेनाइजर, या तो हैंसन नोड, या न्यूकूप